Thank you, ma'am. A very amazing afternoon to all the wonderful people present here. It is my honor to welcome all the dignitaries, Provost Sir, Colonel Sir, Abhinand Pandya Sir, Dean of SOE and SOS, all the faculty members, admin staff, and my dear friends. I'm extremely honored to welcome you all on behalf of Indrashil University family. We are truly graced with your presence. Today, we are all here to celebrate Parakram Divas, that is Subhash Chandra Bose 125th Jayanti. It is to honor and remember Netaji's indomitable spirit and selfless love to the nation, selfless service to the nation. Also, today we are celebrating Ayu's Ethnic Day, which is a vibrant cultural event reflecting diaspora of Indian culture and values. So, for moving ahead with today's celebration, let's begin with lamp lighting ceremony. For that, I would like to hand over it to Bhavesh Jain sir. जैसे नफरत नफरत को नहीं मिटा सकती, बस प्यार मिटा सकता है, उसी प्रकार अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता, केवल रोशनी मिटा सकती है. So let us wish this light of education takes over the darkness of differences, injustice, and violence in the world and guide us towards progress, equality, and freedom. So, without further delay, let's start with our very first event, पराक्रम दिवस. उसके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी. वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे. वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है. हमने तो उनकी नई कथा आजाद हिंद फौज से जानी है. With this, I would like to invite Miss P. Chandana ma'am to give a speech on Netaji Subhash Chandra Bose and enlighten us with all his spirit and selfless work for the nation. Thank you so much, Akanksha. Freedom is not given, it is taken. A very inspiring line by our beloved Netaji Subhash Chandra Bose. Today, it's his 125th birth anniversary year. Popularly, we address him as Netaji. In order to honor the late freedom fighter's spirit and selfless service to the nation, the center has decided to celebrate his Jayanti every year as Parakram Divas. He was born in a family of 14 children in Cuttack, priorly Bengal province, British India. Netaji grew up to become a noted freedom fighter of international distinctions with the aim to inspire citizens, especially the youth, to act with fortitude in the face of adversity as Netaji did.
The day also aims to infuse in a spirit of patriotic in the people of our country. There are few qualities which I would like to highlight about our Netaji, which makes him stand out from others. He was a brave and a great freedom fighter, also a great diplomat. He was a patriot of patriots and was a brilliant student and an intellectual who cleared the civil service exam in his very first attempt. He believed in Bhagavad Gita as a source of inspiration. It is extensively acknowledged that Netaji coined the slogan Jai Hind. Gandhiji in 1942 referred to Subhash Chandra Bose as prince among the patriots. Bose was one of the most prominent freedom fighters in the independence struggle of India against the British. Commanded by Netaji, soldiers of the Indian National Army, also known as the Azad Hind Fauj, gallantly fought for the undivided and independent India. The iconic freedom fighter, known for his militancy approach for liberating India, was arrested, released, and rearrested countless times. His achievements are endless. So I would like to present a short video to pay a tribute to our beloved greatest hero, that is Netaji Subhash Chandra Bose. Sir, please play the video. भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की 23 जनवरी को 123वीं जयंती मनाई जा रही है। प्यार से उन्हें नेताजी कहा जाता था। उनके भाषण हमेशा से प्रेरक रहे और लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। सन 1944 में उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्यों के लिए बर्मा में दिया गया उनका भाषण सबसे यादगार रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनके भाषणों में सबसे लोकप्रिय लाइन है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिसके बारे में सुनकर मन में देशभक्ति की भावना हिलोरे लेने लगती है, निराशा दूर हो जाती है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग उठता है। नेताजी उपनाम उस वीर सुभाष चंद्र बोस पर ही ज़्यादा शोभा देता है। भारत माँ के इस दिव्य सपूत का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक नगर में हुआ था। इनकी ममतामयी माँ का नाम प्रभा देवी व पिताजी का नाम जानकी बोस था। इनके पिताजी एक जाने माने वकील थे। नेताजी अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी। दोस्तों, बोस साहब ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के बावजूद सरकारी नौकरी को ठोकर मारकर माँ भारती के गुलामी की बेड़ियों को हटाने के लिए क्रांतिकारियों के पथ पर चल निकले। उन्होंने अपने जीवन मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। वह अपना तन मन धन सब भारतवर्ष की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। नेताजी को सार्वजनिक जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन अहिंसा के पथ पर चलना उन्हें गवारा नहीं था। वह जानते थे कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, आज़ादी को अंग्रेजों से छीनना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे अनेक नौजवानों ने सुख दुख देखे बिना आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष जारी रखा। नेताजी ने बंगाल को जगा दिया और देखते ही देखते आज़ादी की लड़ाई के अग्रदूत बन गए। सन 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने जल्दी ही कांग्रेस छोड़ दी व फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। तदुपरांत उन्हें उनके ही घर में
अंग्रेजों द्वारा नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन वे 26 जनवरी 1941 को अपने घर से भाग निकले और जर्मनी पहुंच गए, जहां पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज में सेनानियों की संख्या लगभग 40,000 थी। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर बाग बना हुआ रहता था। वह अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, व दिल्ली चलो" जैसे नारे दिए। सन 1943 से लेकर सन 1945 तक आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, जिससे अंग्रेजी हुकूमत विचलित हो गई और उन्हें अब यह महसूस हो गया कि अब उन्हें भारत को छोड़ना ही होगा। लेकिन 18 अगस्त 1945 को दुर्भाग्यवश एक विमान यात्रा के दौरान नेताजी कहाँ लापता हो गए और उन्हें क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास में आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, हमें आज 23 जनवरी को उनकी जयंती पर उन्हें याद कर उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। Thank you, sir. We are pleased to inform you that we are joined by none other than our energetic Abhinand sir. So I would like sir to speak a few words on this occasion. Abhinand sir. Hi, good afternoon to all of you, and thank you for giving me an opportunity on this auspicious day, I will say that way, because Netaji Subhash Chandra Bose anniversary is an auspicious day, I will say that way, because we have to learn a lot of things from him. One of the few sentences which I have told, which exists now, उन्होंने पहले कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, but he also told that लाइफ के अंदर जब तक संघर्ष नहीं है और रिस्क नहीं है तो लाइफ आपकी अधूरी है, and that exists now. So if you look at the example of any of our founder, just like our founder chairman I. Modi sir is there, or you take the example of either Steve Jobs or anybody, in their life they have taken a lot of initiative और risk लिया है, आगे गए हैं. And that's why lot of students, my dear friends, I always tell them थोड़ा risk लो, आगे बढ़ो, and move above the head. So that there are a lot of examples which I can give. The people like Just Dial example, which I was giving it to one of the lecture now. That guy has moved from selling of India Infoline books to being a 7,600 crore company in 12 years. थोड़ा संघर्ष करके लाइफ में रिस्क लेते हैं तो यू कैन मूव फॉरवर्ड. सो दैट्स लर्निंग फ्रॉम देम. एंड ओवरऑल दिस एथनिक डे सेलिब्रेशन इज गुड. You are touching base our own tradition and you are getting back to the roots. So I love that part. Generally, the ethnic day celebration goes in line with our own Garba celebrations, and that's where we see the flair of the beautiful kids moving with lot of beautiful creation of kids from Kutchi to Rajasthani and other UP and other traditional things. So welcome you all, and I hope to see a lot of flavors of Ethnic Day celebration. Thank you all, and God bless you all. Thank you so much, sir. As you all know that Subhash Chandra Bose had a very big role in India's independence movement. He was known for his advocacy of socialist policies. So we will be ever indebted for his contributions in the India independence. And in future, India will be continuing to remember him on this day. Thank you once again. Now I would like to request Akanksha Singh to take over the charge for Ethnic Day celebrations. Thank you, ma'am. Thank you for enlightening us with Netaji Subhash Chandra Bose and all his work for the nation. Now we'll move forward. I know everyone is really excited about the event related to Ethnic Day, but before it, I would like to speak a few things about Ethnic Day. This Ethnic Day, let's connect to our cultural roots again. Life is indeed a celebration. और इससे ज्यादा स्पेशल और यूनिक क्या होगा कि हम सब मिलकर अपनी एथनिसिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कीपिंग द मोटो अलाइव ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी.
क्योंकि डाइवर्सिटी हमारी कंट्री को और भी खूबसूरत बनाती है और एथनिक डाइवर्सिटी एड्स मोर रिचनेस टू आवर सोसाइटी। इन द एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, जब ज्यादातर लोग आजकल की भागदौड़ में अपने कल्चर से, अपने रूट से दूर होते जा रहे हैं, तब इवेंट्स जैसे एथनिक डे हमें हमारी यंग जनरेशन को हेल्प करता है कि हम रिवाइव कर सके द लव, द रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चर, और हम रिकनेक्ट कर सके खुद को अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चरल रूट से। ये हमें हेल्प करता है कि हम इंजॉय कर सके द ट्रू एसेंस ऑफ आवर ओल्ड एज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जिन्होंने शेप किया हमारे फोरफादर्स के लाइफ को। ये हमें रियलाइज कराता है कि कितना जरूरी है हमारे लिए कि हम अपनी रिच लेगेसी को कैरी करें और इसे अपनी आने वाली जनरेशन को जरूर ही फॉरवर्ड करें। हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में कितने ही एथनिक ग्रुप्स हैं जिनका खुद का स्पेशल कल्चरल, जेनेटिक, लिंग्विस्टिक और सोशल डाइवर्सिटी है। ये जो एरा है सोशल मीडिया का और डिजिटाइजेशन का, ये हम सबको साथ लाया है ताकि हम सेलिब्रेट कर सके इसे साथ मिल करके, और हम एक्सपीरियंस कर सके एक दूसरे का कल्चर। Ethnicity is something that attracts us the most about any culture. As a token of respect for different cultures which are interwoven to form a vibrant fabric, ethnicity should enrich us and not to be used to divide us. हमारी जो ये ability है कि हम maintain कर पाए unity in diversity, यही हमारी खूबसूरती है और यही हमारा टेस्ट भी है for our civilization. इस सेलिब्रेशन का मेन मैसेज यही है कि हम रिस्पेक्ट करें अपने ट्रेडिशन को और रिकॉग्नाइज कर सके द कल्चर एंड ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि हम आज एक साथ इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो परहैप्स दिस इज द राइट टाइम टू गो बैक टू आवर रूट्स एंड हम अप्रिशिएट करें हमारे कल्चर को, हमारे रिच हेरिटेज को। इस टाइम को यूज कीजिए और अपने कल्चर को जानिए। ऑब्वियसली उस टाइम पे आप एंजॉय करना ना भूलें, बट ऑब्वियसली हम यहाँ से सीख भी बहुत कुछ सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव अहेड विद द इवेंट्स। अगर इवेंट की बात करें तो ऑब्वियसली एथनिक डे को बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है, पर एक अच्छा तरीका यह भी है कि हम सबसे ज्यादा अलग कपड़े, नए कपड़े, ट्रेडिशनल कपड़े पहनना एंजॉय करते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि ब्रेक आउट द एथनिक बेस्ट वो हम ये इस तरीके से कर सकते हैं कि बाय अडॉर्निंग द ट्रेडिशनल फैशन आउटफिट, जैसे कांचीपुरम सिल्क साड़ी, सलवार सूट एंड व्हाट नॉट। तो जो हमारा पहला इवेंट है वो ये है कि हम लोगों को वीडियोस दिखाई जाएंगी पार्टिसिपेंट्स की, और उसमें अलग अलग इंडियन स्टेट्स के बारे में उन बैकग्राउंड म्यूजिक भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्टिसिपेंट, and that is Miss Chitrangi Wagmaria from BSc Bioscience first semester, and her traditional wear is from Gujarat state. મારું મન મોહી ગયું, મારું મન મોહી ગયું, મારું મન મોહી ગયું. હે તને જાતા જોઈ પનઘટની વાટે, મારું મન મોહી ગયું. હે તને જાતા જોઈ પનઘટની વાટે, મારું મન મોહી ગયું. તારા રૂપાળા ગોરા ગોરા ઘાટે, મારું મન મોહી ગયું. તારા રૂપાળા ગોરા ગોરા ઘાટે, મારું મન મોહી. That was really remarkable and she looked so pretty. Now our next participant is Miss Divya Rathore from BSc Bioscience first semester, and her traditional wear is from Gujarat state also.
सो वीडियो में ऑडियो तो नहीं था, दोबारा प्ले होगा क्या? सर अनम्यूट कीजिए, भाविक सर अनम्यूट करके। ओके, मींस वीडियो नहीं था, ओनली फोटो इज थे उनके। ओके, सो दूसरा वीडियो नहीं है? नहीं मैम। ओके ओके, आकांक्षा जस्ट रीड आउट द थिंग. Okay, ma'am. That was also indeed a beautiful performance. Like she was expressive even without the audio thing. Now we'll move on to next participant. That is Miss Ritu Merchant from MSc Chemistry first semester, and her traditional wear is from Rajasthan state. घनीसा हमारो नाम ऋतु मर्चेंट है। थे सबको स्वागत है राजस्थान में। आप सब तो जानते हो कि राजस्थान इंडिया का टूरिज्म प्लेस है। राजस्थान में बहुत सारी चीजें फेमस है, पर उसमें सबसे ज्यादा फेमस उदयपुर है। लेक सिटी ऑफ इंडिया उदयपुर। उदयपुर महलों और उसकी स्टोरीज के अलावा एक नाइट शो के लिए भी बहुत जाना जाता है। और एक चीज राजस्थान में बहुत फेमस है, वो है पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप सब जानते हैं जयपुर। तो जयपुर पूरा का पूरा उसका स्कल्पचर पिंक कलर का है। और उसके अलावा राजस्थान में लोक नृत्य घूमर बहुत ही ज्यादा फेमस है, और उसका खाना दाल बाटी वो तो बहुत ही अच्छा है। राजस्थान एक और चीज के लिए जाना जाता है, उसकी हॉरर एक्टिविटीज के लिए, जिसमें भानगढ़ वर्ल्ड की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। और भी बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस है, पर भानगढ़ वर्ल्ड फेमस है। तो आप सबको तो राजस्थान के बारे में सब कुछ पता चल गया, तो अब मैं चलती हूँ। थे सब ठीक हो गए ऐसा मुझे पता है। Good job, you girl. We can all see how much hard work she have put in, or the card was really beautiful. Now we'll move on to next performance of Miss Vishwa Shah from BSc Bioscience first semester, and her traditional viewer is from Rajasthan state. अतिरमणीयं तव तिरुरूपं पूर्णत्रयीश हरे हरे कृष्णा पूर्णत्रयीश हरे अतिरमणीयं तव तिरुरूपं पूर्णत्रयीश हरे हरे कृष्णा पूर्णत्रयीश हरे अतिरमणीयं तव तिरुरूपं पूर्णत्रयीश हरे हरे कृष्णा पूर्णत्रयीश हरे अतिरमणीयं तव तिरुरूपं She was beautiful and her dress looked stunning. Now we'll move on to the next and the last performance, that is of Bhargav Joshi. And we have their pictures and there's a presentation. Sir, I have been told that I have to read it out, but this is in Gujarati and I can't read Gujarati, so I'm sorry. If Anyone who can read out Gujarati can help in among the panelists. Have sir. Yes. Hello. Yes. I'll read. Hello. I can read. Yes, Sankita madam. Yes.
तो ये भार्गव का पिक्चर है और उसने गुजराती में थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। નમસ્તે મિત્રો, મારું નામ ભાર્ગવ. હું કચ્છના અંજાર તાલુકાના ભાલોટ ગામનો વતની છું. અહીંયા હું તમને કચ્છ વિશે થોડું જણાવીશ. કચ્છ પ્રાચીન સિંધુ સંસ્કૃતિનો ભાગ મનાય છે. કચ્છમાં ફરવા માટે તો ઘણા સ્થળો છે, જેમ કે સફેદ રણ, રમણીય નજારો, વિવિધ પ્રકારના કિલ્લા અને નળ સરોવર જેવા ઘણા બધા ફરવાલાયક સ્થળ છે. અહીંયા જોવા જઈએ તો આખું કચ્છ જ ફરવાલાયક છે. અહીંયાના હથકલા અને તેની માટીકલા માટે પણ પ્રખ્યાત છે. અહીંયાનો પહેરવેશ પણ ઘણો આકર્ષિત છે. કચ્છ ફરવાનો સારો સમય ઓક્ટોબરથી ફેબ્રુઆરીનો છે. અહીંયા દર વખતે પતંગોત્સવ અને રણોત્સવ જેવા વિવિધ પ્રોગ્રામ થાય છે. અહીંયા કચ્છ વિશે થોડી પંક્તિ રજૂ કરું છું. શિયાળે સોરઠ ભલો, શિયાળે સોરઠ ભલો, ઉનાળે ગુજરાત. શિયાળે સોરઠ ભલો, ઉનાળે ગુજરાત. ચોમાસે વાગડ ભલો, મુંજે કચ્છડો પારો માં. અને છેલ્લે એટલું જ કહું કે કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા. Thank you so much, ma'am. This was our last participant, and now our judges will announce the result after a short video. I would like to announce the name of our judges. The faculty judges are Arun sir. He is from School of Engineering, and Ritu Chaudhary ma'am from School of Science. Our student judges are Mahima Suthar from SOS and Shaira from SOE. We'll announce the result after a video. So I would like to ask Bhavesh sir to play the video, the last video.
जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इतने देर से जिस एथनिसिटी की, जिस कल्चरल डाइवर्सिटी की हम बातें कर रहे थे, तो इस वीडियो से आपको कुछ तो समझ आ ही गया होगा कि हमारा कल्चर और हेरिटेज कितना रिच है, कितना डाइवर्स है। अब इस वीडियो के बाद मैं कुछ 1-2 लाइन शेयर करना चाहूंगी कि इट्स एथनिक डे, और पर्सनली मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था एथनिक ड्रेस का, वो ये था कि मेरी मम्मा की जो छोड़े हुए सलवार सूट होते थे, उसमें से जो दुपट्टा होता था, आई यूज्ड टू रैप अराउंड दैट, ड्रेप अराउंड माय बॉडी, एंड आई यूज्ड टू वियर इट लाइक साड़ी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एथनिक ड्रेस का, अगर आप लोग भी इससे रिलेट कर पाए तो। So without further delay, let's move on to our judges. They will announce the result. Yeah. So I would like to request Arun sir to announce the winner's name. Arun sir, did you get the result? Score? So you're not audible. Okay, okay. Am I audible? Yeah, absolutely, sir. Okay, okay. सबसे पहले तो मैं आप सबों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज पराक्रम दिवस भी है और इथनिक डे है। जैसा कि ये पराक्रम दिवस है, ये पराक्रम करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होती है। मैं अभी रिजल्ट अनाउंस करता हूँ, लेकिन पराक्रम करने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमारे पास पंख होने चाहिए, और दूसरा उड़ने के लिए आसमान होना चाहिए। हमारे पास पंख हो, अगर पंख हो भी जाए और आसमान ना हो तो हम उड़ेंगे कहाँ पे। इसलिए हमारे पास जो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया, वो हमें पंख भी दिया और उड़ने के लिए आसमान भी दिया। अगर हम पंख की बात करते हैं तो इससे पहले हमारे पास हम केवल पक्षी तो थे लेकिन पंख नहीं था। उन्होंने पंख दिया लेकिन उड़ने की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आपको उड़ना पड़ेगा। और उसके बाद उसने कहा कि आपको अगर आसमान में उड़ना है तो आपको आसमान में बनाना पड़ेगा। तो अगर जीवन में उड़ना चाहते हो तो एक अपना नया आसमान बना लो और भीड़ से हट के एक नई पहचान बना लो। उसने इंटरनेशनली भी अलायंस किया। उन्होंने जो कम्युनिटी का फॉर्मेशन किया, जिसे आजाद हिंद फौज की बात करते हैं, उन्होंने केवल नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी, जैसा कि वीडियोस में हमने देखा, तो वो सबसे पहले जर्मनी गए और जर्मनी वहां जाके हिटलर से मिले। हिटलर के 5 रूप था उसमें, मतलब वो इतने डरे हुए थे कि उसके 5 रूप थे, उसे कोई पहचान ना ले। तो जब सुभाष चंद्र बोस मिलने गए, भारत के लिए मदद मांगने के लिए गए, तो पहले हिटलर से मिले तो हिटलर आके उनसे हाथ मिलाते हैं, सुभाष चंद्र बोस हाथ नहीं मिलाते। फिर दूसरा हिटलर आता है, वो हाथ देते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं, नो आई वांट टू मीट विथ हिटलर, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। इस तरह से 4-5 हिटलर वहां पे आए, सबको उन्होंने इग्नोर किया और अल्टीमेटली जो मेन हिटलर था उसके पास पहुंचा। और हिटलर इसी बात से इंप्रेस हो गया था कि आप मुझे पहचान कैसे ली, और इससे बड़ा नेता और हो कौन सकता है जो हिटलर को पहचान ले। और हिटलर ने वहां पे उसको आजाद हिंद फौज के लिए
मदद की और उसने कहा कि आप जापान के साथ संधि करिए। फिर वो जापान जाते हैं और जापान फिर वो सिंगापुर पे वो अटैक करने के लिए जब जाते हैं तो वहां पे भारत के भी सैनिक रहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बॉम्ब नहीं फेंका, उन्होंने सबसे पहले लिख के फेंका कि भारत के सैनिकों कब तक अंग्रेजों के गुलाम रहोगे और उनके साथ लड़ोगे। उन्होंने चिट्ठा फेंकी लिख करके और जितने भी भारतीय थे फिर एकत्र हो गए कि हम गुलाम क्यों रहे। इस तरह से आजाद हिंद फौज की उसने रचना की और फिर सबों को एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। उन्होंने एक आसमान दिया, ये आसमान भी दिया, उन्होंने पंख भी दिया, अपनी भीड़ से अलग एक पहचान बनाया। वो तो 12 बार जेल गए अपने जीवन काल में। और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका मतभेद तो था लेकिन मन भेद नहीं था। और मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे हैं तो वो यह भी स्वीकार किए थे अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं सुभाष चंद्र बोस तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, पाकिस्तान को अलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू बनते हैं तो मुझे एक अलग पाकिस्तान चाहिए। इस तरह के लीडर थे सुभाष चंद्र बोस। इंटरनेशनली अलायंस करते हैं बात को। इस तरह से हमें भी एक अपने अंदर लीडरशिप करना चाहिए और दैट इज द वर्ल्ड गोइंग फॉर द कोलैबोरेशन एंड कोरिलेशन। Collaboration and correlation. If you want to run any kind of organization, you require two things. First one is collaboration, second one is correlation. और ये दोनों चीज का सामंजस्य स्थापित किया सुभाष चंद्र बोस ने। Now I wanted to announce the result for the ethnic day. The first position on the first position is Chitrangada. The first position goes to the Chitrangada and second position goes to Vishwa Shaw. Please give a big hand for both of them. Am I audible? Yes, sir. Thank you so much, sir. Yes, Akanksha. Thank you, sir. Indeed, that was an inspiring story, and collaboration, cooperation is the key. After this, I would like to call Ankita ma'am from School of Science to give vote of thanks. Good afternoon, one and all. First of all, congratulations to all the winners. Then, really appreciate the effort of all of you. All the participants you have brought. So, on behalf of cultural committee, thank you to all the students. Next, I would like to thank our today's anchor, Akanksha Singh. You are superb, my dear. Superb. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. With this, I would like to end rest our day's celebration, and thank you so much. Thank you everyone for being here. We are all extremely honored. Thank you so much, Akanksha. Thank you. Now we would wrap it. Thank you. Thank you, everyone. Net